Let's do the more preparation and more hard work for our coming board examination. यहाँ पे जो कुछ questions मैंने लिखे हैं, you can have either in a E section, in a parts, or as a 2 mark question or 3 mark question. यहाँ पे जो question है, ये question जो है even you can have in a your unseen passages because passage will be there and that is from your any unit from 10 unit and the question will be the same or maybe related to this topic. The question is molecular masses of polymers are determined by osmotic pressure method and not by measuring other qualitative property means lowering of vapor pressure, elevation of boiling point and freezing in depression in a freezing point. We are using only osmotic pressure method. Why? Give reasons. Why we are using osmotic pressure method for determining the molecular masses of the polymer. Even this question came as a MCQ in 2023. Like which method is used to find out the molecular masses of the polymers. The option is osmotic pressure or lowering of vapor pressure or elevation of boiling point or depression of freezing point. So the correct answer is that is osmotic pressure. Question can either in a MCQ or as a assertion based. So why we are using osmotic pressure to find out the molecular masses of the polymer? तो reason give two reasons लिखा हुआ है, two reasons देनी है. तो आंसर फर्स्ट है osmotic pressure can be calculated at a room temperature. Osmotic pressure method or pressure calculated at room temperature, calculated at रूम टेम्परेचर. ये एक रीजन है कि इसको आप रूम टेम्परेचर पे भी कैलकुलेट कर सकते हो. इसीलिए हम किसी भी पॉलीमर का, प्रोटीन का या हम लोग अमीनो एसिड्स का या कार्बोहाइड्रेट का, किसी भी पॉलीमर का अगर आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेटेड एट रूम टेम्परेचर. इसे हम रूम टेम्परेचर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकेंड रीजन है osmotic pressure can give you the good values for the even for dilute solutions. So we can say that osmotic pressure can give good analytical values at low or for dilute solutions. dilute solution के लिए भी आपको बहुत अच्छी values मिल जाएंगी. Then this is for first question. Second is cyanide ion act as an amphibian nucleophile. As we know that it's a very good nucleophile, but it is a ambivalent means it can either act from the C or either can donate the electron from the end. दोनों से दे सकता है. From which end it act as a stronger nucleophile in the aqueous medium. Aqueous medium में it will give from the carbon or from the nitrogen. You can just think. Give reason for your answer. So it is going to give the electron from the carbon end. Why? Let me write the answer because it will form a carbon-carbon bond, not carbon-nitrogen bond, and carbon-carbon bond are more stronger as compared to carbon-nitrogen bond. So answer is that we can write yes, cyanide ion. तो इस तरह से आप लिख सकते हैं is an strong nucleophile. कैसा है ये strong nucleophile can donate electrons from carbon atom
or from nitrogen atom. That is why it is amphibian. But it will give, from which end it act as strong, but it will give electrons from carbon atom to act as strong nucleophile, because the carbon-carbon bond formed is more stronger as compared to कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम द यूनिट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। Now we have to be write down the formula. IPSC names are provided to us and we have to write the formula by seeing this IPSC names. Two questions, two coordination complexes IPSC नेम दिए हुए हैं, तो दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का यहाँ फॉर्मूला बनेगा। तो फर्स्ट वन इज पेंटाएमाइन नाइट्रेटो ओ मींस एम्फिडेंट लिगेंड नाइट्रो की बात की जा रही है। राइट नाउ इट इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ओ सेंटर। कोबाल्ट जो लुईस सेंट्रल एटम या लुईस एसिड यहाँ पे है दैट इज कोबाल्ट है। ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है, पैरेंथेसिस में लिखी गई है। So pentaamine. So we have to be write the answer for the first one pentaamine। तो मतलब मुझे एमाइन अमोनिया लिख लेना है, डबल एम दिया हुआ है। पेंटा मतलब इसके 5 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है। पेंटामाइन कवर कर लिया। नाइट्रिटो, नाइट्रिटो NO2 लिखते हैं बट O का सेंटर दिया है तो मतलब हमने NO आपने इस तरह लिखना कि इस बार O से डोनेट कर रहा है और इसको ब्रैकेट में लिखो या ना लिखो बिकॉज कोई उसका और मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल है। पेंटाएमाइन नाइट्रेटो मैंने O लिख दिया। कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम इस तरफ लिखा जाएगा, कोबाल्ट को हम इस तरह से लिख लेंगे। ब्रैकेट में आप इसे बंद कर दो क्योंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला यही है कि द कॉम्प्लेक्स शुड बी इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। हमने लिख दिया और लेट मी चेक विल इट हैव ऑक्सीडेशन नंबर, मुझे 3 दिया हुआ है। मैंने पेंटाएमाइन लिख लिया। नाइट्रेटो O से लिंक है, ONO को लिख दिया। नो ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। एज वी नो दैट ये न्यूट्रल है, इट विल नॉट कैरी एनी चार्ज, इट विल कैरी 1 चार्ज, -1 है, वहां पे 3 है, मतलब कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसके ऊपर चार्ज लगाना है। ओवरऑल चार्ज मुझे कितना लगाना है, अगर मैं 2 लगाती हूँ और इसके ऊपर प्लस कर देते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो थर्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ मैं x ये 0 रहेगा, ये -1 रहेगा, ओवरऑल चार्ज +2 रहेगा, ये उधर जाके 3 हो जाएगा और उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाएगा। तो दिस इज द वे वी कैन जस्टिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर। और ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो गया हमारे पास। आईपीएससी नेम्स प्रोवाइडेड है और हमने आईपीएससी नेम प्रोवाइडेड है और हमने कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर या हमने इसका फॉर्मूला बना लिया है। पेंटाएमाइन नाइट्रेटो O से लिंक कर रहा है, कोबाल्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो यहाँ पे क्योंकि -1 यहाँ है और ओवरऑल चार्ज ये हो जाएगा। नाउ सेकंड है हमारे पास, सेकंड इसको हम A और B की फॉर्म में लिख लेते हैं। सेकंड हमारे पास है दैट इज पोटेशियम। पोटेशियम के लिए आप ऐसे ही K लिख लो। देन टेट्राक्लोरिडो मतलब कि पोटेशियम बाहर है, इट इज वर्किंग एज अ पॉजिटिव पार्ट ना, तो बाहर है या काउंटर आएगा इस वक्त या पॉजिटिव पार्ट का काम कर रहा है। और टेट्राक्लोरिडो निकलेट,
जो आइडेंटिटी है कोऑर्डिनेशन वो नेगेटिव है, तो आप अब इसको ब्रैकेट में डाल लो। निकल का कॉम्प्लेक्स है ये, निकल लिख लिया हमने इस तरह से। और टेट्राक्लोरिडो, तो क्लोरिडो मतलब Cl, टेट्रा मतलब उसके 4 एटम है। नाउ वी हैव टू चेक द ऑक्सीडेशन नंबर, मुझे यहाँ पे 2 दिया हुआ है। -1 क्लोरीन के ऊपर होता है तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ जाके ये प्लस है 3 हो जाएगा। मुझे अगर मैं इसको 2 कर दूं, अगर मैं K को 2 कर दूं और निकल क्लोरीन 4, ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं रहेगा। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, इसको हम पास में लिख लेते हैं, दैट इज K2। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया, क्योंकि अगर मैं देखूं यहाँ पे पोटेशियम के ऊपर +1 होता है, 2 आ जाएगा, प्लस x का मुझे निकल का तो पता ही नहीं है, और क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, 4, ओवरऑल चार्ज 0, -4 में से 2 जाएगा और 2 आ जाएगा, मींस वी आर एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है जिसका नाम था पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो निकलेट। ये नेगेटिव था इसीलिए इसके साथ निकलेट आया है, तो हमने इस तरह से इसका नाम लिख दिया है। डू योर प्रिपरेशन, राइट द आंसर्स, and see you in the next video with more questions.